Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online social studies class. Today we will continue our revised edition secondary social studies for Pakistan for class 7. So students, as you know, we have started this book before and we have finished chapter number 1, Geography of the Muslim World. Today we will study climatic regions of the Muslim world, chapter number 2 at page number 4. So open your book at page number 4. Okay, climatic regions of the Muslim world. What mean by climatic regions? Climatic regions means students Muslim world या वो इलाके जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर एक जैसा वेदर रहे, एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन रहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट डेजर्ट्स. स्टूडेंट्स, हियर इज 8 climatic regions in this chapter. Today we will study about the first 4 regions. So let's start. Deserts means Sahara. As you know, as you read in the previous classes, desert is a place where no vegetation, no survival of life, no water, yeah, you can say very less water is there, or very less food sources are present there. यानी कि डेजर्ट्स ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ प्लांटेशन नहीं है, कोई एनिमल लाइफ नहीं है, ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल नहीं है, पानी है ही नहीं या बहुत कम है. सो फूड के भी सोर्सेज कम हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डेजर्ट्स इन बुक 1. अपार्ट फ्रॉम सम ऑसेस वेयर वाटर कैन बी रीच्ड फ्रॉम underground sources, deserts have hardly any agricultural output, but some of them have immensely valuable minerals such as oil. अच्छा, अब क्या है कि डेजर्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पुअर हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स, कुछ नामियात हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं. मिनरल्स सच एज़ ऑयल, कॉल वगैरह. ठीक है. द मुस्लिम वर्ल्ड सीम्स टू हैव बीन अलॉटेड more than its share of deserts. Almost 3/4 of all the major deserts in the world are in Muslim territories. These are the Sahara in Africa, which makes up 60% of the total deserts area in the world. The Arabian, Thar and Somali deserts, the Kazakh come in Uzbekistan and Dusty Alert in Iran. अच्छा जी, क्या है कि 3/4 डेजर्ट एरिया जो है दुनिया का जो है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ आता है, जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें आता है. और इनमें सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो क्या है, सहारा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीका में है और जो 60% टोटल डेजर्ट एरिया कवर करता है. और इसके अलावा क्या है, अरेबियन एंड डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट, सोमाली डेजर्ट एंड काजिल कम, और ये कहाँ है, उज़्बेकिस्तान में है. सो द सेकंड वन इज सेमी डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड. सेमी, व्हाट डज mean by semi desert? Semi desert means, semi means half, desert as you read about deserts before. So semi desert and scrubland, you can say this is shrubland, like tough plants होते हैं, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे कुछ टफ प्लांटेशन होती है जो कि हर्ड्स, शीप वगैरह जो है उसको ग्रेस करते हैं, उनके लिए वो चारा होता है. जो वॉन्डरिंग एनिमल्स हैं लाइक गोट, शीप वगैरह. सो सेमी डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड यानी कि कुछ डेजर्ट एरिया है और कुछ वहाँ पे प्लांटेशन है, लाइक कुछ टफ प्लांट्स हैं. अच्छा, डेजर्ट्स के अंदर टफ प्लांट्स होते हैं, वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं? टफ प्लांट्स इसलिए वहाँ पे सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत दूर तक फैली होती हैं, और ज़मीन के अंदर जो है, सरफेस के अंदर पानी है. ये तो आपको पता होगा, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि 75% जो है पानी है और 25% जो है वो ज़मीन है. सो ज़मीन के अंदर जो है वो सारा पानी है. तो जो टफ प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स बहुत दूर तक ज़मीन के अंदर तक फैली होती हैं, जो कि अपने लिए पानी तलाश कर लेती हैं, इसलिए ये डेजर्ट में ये पौधा सर्वाइव करता है. दिस हैज़ occasional rain but no enough crops to grow satisfactorily. Like ordinary deserts, the daytime temperature is high and the nights are often cool, cause tough plants and shrubs grow as these have long roots which go down to whatever water exists below the surface. Their only real use for agriculture is for wandering animals, especially goats and sheep. They are valuable for Pakistan because these hardy animals give hard, tough wool, which is excellent for making carpets,
पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान और सेमी डेजर्ट्स। अच्छा जी, सेमी डेजर्ट्स में क्या है, ओकेजनल रेन है, कभी कभी बारिश होती है और ये क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और नाइट टाइम में ये टेम्परेचर कूल हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, श्रब्स हैं, टफ प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिनकी लॉन्ग रूट्स हैं और वो पानी तलाश कर लेते हैं कि पानी कहीं भी हो। और इसके अलावा क्या है, एग्रीकल्चर के लिए ये एरिया बेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉन्डरिंग एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, जैसे गोट, शीप वगैरह। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि उनकी जो वूल है उससे क्या बनता है, कारपेट्स बनते हैं, अदर गारमेंट्स भी बनते हैं, लाइक आपके जो ओवर कोट्स वगैरह होते हैं फर वाले, वो भी बनते हैं। सो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान आर सेमी डेजर्ट। पाकिस्तान का जो वेस्टर्न एरिया है वो सेमी डेजर्ट है, यानी कि कुछ डेजर्ट्स है और कुछ थोड़ा बहुत उसमें टफ प्लांट्स भी हैं। सो टर्न द नेक्स्ट पेज, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का क्या मतलब है बच्चों? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मीन्स वेरी हॉट प्लेस, ठीक है, जहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। दीज आर यूजली फाउंड बिटवीन द डेजर्ट्स एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दे आर वार्म थ्रू आउट द ईयर बट हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन 500 to 1500 millimeter which falls between April and September in the northern hemisphere। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या हैं कि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, और जो अप्रैल से सितंबर के बीच में होती है। दे हैव स्कैटर्ड ट्रीज एंड बुशेस एज लॉन्ग ग्रास विच डाइज डाउन इन द लॉन्ग ड्राई सीजन। और यहाँ पे क्या है, झाड़ियाँ वगैरह हैं और लॉन्ग ग्रास है, लाइक इस कलर की ग्रास होती है जो कि धूप और गर्मी की वजह से नीचे लेट जाती है। So in Africa, such grasslands are home to many game animals: buffaloes, zebras, giraffe, elephant, rhinos, lions, and tigers. Have a flourishing tourist industry with hundreds of thousands of people going on safari to watch the animals. Pakistan once had a lot of this type of climate and vegetation, but now almost none is left. The land has been cleared, and with extra water from irrigation, all kinds of crops are grown on it. ओके जी, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पे स्कैटर्ड ट्रीज़ एंड बुशेस हैं, ऐसे लाइक प्लांट्स या ऐसी झाड़ियाँ हैं, लॉन्ग ग्रास है जो कि धूप और गर्मी ड्राई सीज़न की वजह से डाई डाउन कर जाती है। और ये अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स मोस्टली अफ्रीका में हैं, और यहाँ पे क्या है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे जिराफ, एलिफेंट, लाइन्स वगैरह। और ये क्या है, मोस्टली ये ऐसे जो इलाके होते हैं, आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो ये बेस्ट एरियाज़ होते हैं फॉर विजिटर्स। सफारी कहते हैं जो लाइक टूरिस्ट वगैरह जाते हैं ऐसे एरियाज़ में और वहाँ की डॉक्यूमेंट्री एक बनाते हैं। आप अगर कभी आपका मतलब आपको टाइम मिले तो आप नेशनल जियोग्राफी के ऊपर ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा अच्छा लगता है देखने में, ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो तो अगर आपको उसकी समझ आए तो, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि पाकिस्तान में एक टाइम था कि ऐसा वेदर और वेजिटेशन होती थी, बट नाउ ऑलमोस्ट नन इज़ लेफ्ट। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या है, अब हर जगह पानी पहुंचा दिया गया है, एक्स्ट्रा वाटर फॉर इरिगेशन, और आबपाशी का काम जो है हो रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट। और ऐसी जगह जहाँ पे लाइक वेजिटेशन नहीं थी या ड्राई क्लाइमेट था, वहाँ पर भी कैनाल्स वगैरह के थ्रू पानी पहुँचा दिया गया है और वहाँ भी अब क्रॉप्स उगा ली गई हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अच्छा जी, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है इसको पढ़ के देख लेते हैं। इन द मुस्लिम वर्ल्ड दीज आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका अलोंग द इक्वेटर इन साउथ ईस्ट एशिया। आपने अक्सर पढ़ा होगा ना कि अफ्रीका के जो जंगलात हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। पिछले दिनों कुछ एक न्यूज़ भी आई थी कि अफ्रीका के जंगलात में कुछ आग वगैरह लग गई और बहुत सारे जानवर और पौधे वगैरह जो हैं वहाँ पे जल गए। तो क्या है कि देयर इज़ हैवी रेन, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 1800 to 2500 millimeter और मोर, and the temperature remains between 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius all year. Naturally, there is a thick forest of all trees with a crown of leaves high up. Below it is semi-darkness with giant creepers twining up the tree trunks to
reach the sunlight above. The main stem of some creepers can be as much as 30 to 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अच्छा जी, ये क्या है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बहुत घने और बहुत हाइटेड प्लांट्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा पत्ते हैं, और क्रीपर्स लाइक उनके साथ भी कुछ ऐसे पत्तों वाली जो बेलें हैं वो फैली हुई हैं, क्रीप जो ज़मीन के साथ साथ चल रही हैं। और ये इतने टॉल जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, उनकी वजह से यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर डार्कनेस रहती है और क्या है, फ़िज़ा में मॉइस्ट यानी कि नमी रहती है। और ऐसी जगह जो है वो एनिमल या ह्यूमन सर्वाइवल के लिए थोड़ी सुटेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ बर्ड्स और कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं या कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। द मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड हियर आर बर्ड्स, जो मतलब यहाँ पे बर्ड्स परिंदे जो है ना वो पत्तों के अंदर खुश रहते हैं, एंड मंकीज़ इन द कैनोपी द लीव्स एट द टॉप, एंड स्नेक्स लीजर्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं बड़े डेंजरस से, लाइक स्नेक्स लीजर्स एंड इंसेक्ट्स बिलो मच ऑफ द फॉरेस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर टिम्बर। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक हार्ड वुड होती है सच एज टीक, सागवान का दरख्त, सागवान की लकड़ी जो कि मोस्टली घर बनाने में, दरवाजे वगैरह ये बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं। वेयर दीज हैव बीन कट डाउन इन द फॉरेस्ट क्लियर, शुगर केन, कोका, रबर, मैंगोज, पाइनएप्पल एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन। और यहाँ पे कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी हैं जो स्पेसिफिक यहाँ पे है, मैंगोज, पाइनएप्पल वगैरह, रबर और ये जो हैं यहाँ पे उगते हैं, यहाँ पे होते हैं। Because of the heat in the moist atmosphere, the rainforests are generally unhealthy. यहाँ पे क्योंकि हीट कम होती है और लाइक वो एक सफोकेशन, यू कैन से एक्सर्शन होती है। जब ग्रीन पत्ते या ग्रास बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनके अंदर से एक हीट निकलती है स्पेसिफिक सी, और वो जो है उसकी वजह से वहाँ पे एक तो नमी होती है क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट वहाँ पड़ती नहीं है, और वो इतना ज़्यादा एक मतलब इतना थिक फॉरेस्ट है, इतने थिक प्लांट्स हैं, इतने हाइटेड और इतने लीफी प्लांट्स हैं, और उनके साथ साथ ज़मीन के ऊपर भी क्रीपर्स हैं, लाइक वो पौधा जो ज़मीन के ऊपर चलता है, लाइक उसकी जड़ें दूर दूर तक गई होती हैं, फैला होता है। तो ये इस वजह से वहाँ पे मॉइस्ट है, एटमॉस्फेयर जो है वो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर है, नमी होती है और हीट होती है, लाइक एक हब्स होता है, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी कभी तो हवा बंद हो जाती है और ऐसे फील होता है कि हब्स हो गया, तो इस टाइप का जो एटमॉस्फेयर हो वहाँ होता है। द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी, इस वजह से वो अनहेल्दी होता है इन्वायरमेंट, विद मेनी डिजीज़ दैट अफेक्ट ह्यूमन इन एनिमल्स, मेनी ऑफ दीज सच एज मलेरिया आर कैरिड बाय इंसेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है लैंड इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी वजह से वहाँ पे मलेरिया या सम अदर टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर प्रेजेंट देयर। However, the rainforests are very, turn the page, important both for their plants and for replenishing the air with oxygen and absorbing carbon dioxide. Although not in the Muslim world, the great Amazon forest in South America America is believed to supply half the world's atmosphere with oxygen. अच्छा जी, ये जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ये ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में बल्कि इसके अलावा भी जो अमेज़न फॉरेस्ट और साउथ अमेरिका में भी ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं पाए जाते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिफरेंट इंसेक्ट्स की वजह से क्या है कि यहाँ पर एनिमल और ह्यूमन लाइफ का सर्वाइवल कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्ट रहता है, सूरज की रोशनी नहीं आती, और आपको पता है कि सूरज की रोशनी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने लेसन को रिवाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी जो 4 क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।